Assalamualaikum students, hope you are good. In last video we had done reading with translation of unit number 12. Choco gets a little help. Now in this video we will do its book exercise. Part A, comprehension. Answer the following questions. Why was the boy given the name Choco? लड़के को चोको का नाम क्यों दिया गया? As you know students, he used to eat a lot of chocolates. That's why he was given the name Choco. So we will write its answer. First we will take from the question. The boy was given the name Choco because he ate a lot of chocolates. Part B, what did Choco's dad give him every week? उसके फादर उसको हर वीक में क्या देते थे? Choco's dad gave him pocket money every week. Did Choco's mother worry about him? क्या चोको की मदर उसके लिए परेशान थी? How do we know? हमें कैसे पता चलता है कि वो परेशान थी? Yes, she was worried. In the story, she says him, look at the state of your teeth. So we get to know that she was worried about his teeth. Part D. Did Choco want to stop eating so much chocolate? Choco चाहता था कि वो चॉकलेट खाना छोड़ दे. इसका आंसर yes होगा और बाकी हम क्वेश्चन से लेंगे. Yes, he wanted to stop eating so much chocolates. Part E. What did Choco see in his room one night? एक रात उसने अपने रूम में क्या देखा? He saw a little man in a large purple turban. Part F. What did he find on his beside table? उसको अपने beside table पे क्या मिला था? He found 10 magic beads on his beside table. Part G. What did Choco tell his dad? Choco ने अपने डैड को क्या बताया? He told his dad to put his pocket money in the bank. Study the picture of Choco brushing his teeth on page 100. Identify and name the objects present to increase and help your vocabulary. पेज नंबर 100 पे जो पिक्चर दी हुई है उसमें आपने चीज़ों के नाम बताने हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. Here is toothpaste, toothbrush, mirror, wash basin and tap. Here down are the tiles. Question number 2. Put these sentences into their correct order. चैप्टर से ही सेंटेंसेस लिए गए हैं, इनको आपने करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? चोको सेव्ड हिज पोको. नो, बिल्कुल भी नहीं. कहानी के स्टार्ट में ही तो नहीं उसने जो अपनी पॉकेट मनी सेव करनी शुरू कर दी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा चोको कलेक्टेड हिज पॉकेट मनी. उसने अपने फादर से पॉकेट मनी ली. देन कम्स चोको वेंट टू द कॉर्नर स्टोर. पॉकेट मनी लेकर वो कहाँ गया था? कॉर्नर स्टोर पे. देन कम्स चोकोस टीथ गॉट डार्कर एंड डार्कर. जब वो इतनी चॉकलेट्स खाता था तो उसके टीथ डार्क होने स्टार्ट हो गए थे. देन कम्स द लिटिल मैन इन द टर्बन स्पोक टू चोको फॉर. जब उसने उससे बात की थी तो तब उसने डिसाइड किया था ना कि मैं छोड़ दूंगा, और फिर उसने अपनी मनी सेव करना स्टार्ट कर दी थी. देन आएगा चोको सेव्ड हिज पॉकेट मनी. देन लास्ट कम द पॉपिट वॉज सीन ऑन द रबिश हीप. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. चोको वॉज ट्राइंग टू स्टॉप ईटिंग चॉकलेट्स. Every day Choco's mother told him, you will become a chocolate. When you have no beads left, जब तुम्हारे पास कोई भी मोती नहीं रहेंगे तो क्या होगा? Then I will come and get you. Part B, working with words. Find the opposite of these words in the story. इनके आपने opposite बताना है. Useful, useless, difficult, easy. Disappear, appear. डिस हटा देंगे, appear. Remember means याद रखना. Opposite है forget, भूल जाना. Find, lost. Find मिल जाना, lost गुम जाना. Morning, evening. Find some treasure.
खजाने ढूंढे। अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फॉर्म वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग आगे पीछे दिए हुए हैं, हमने इनको प्रॉपरली अरेंज करके कोई वर्ड बनाना है। जैसे ये था गोल्ड, इसके वर्ड आगे पीछे दिए हुए थे, तो ये क्या होगा? सिल्वर, SILVER सिल्वर। ब्रॉन्ज, BRONZE ब्रॉन्ज। कॉपर, COPPER कॉपर। ब्रास, BRASS ब्रास। Part C, learning about language pronouns. Do you remember reading about pronouns? वो कह रहे हैं आपको याद है, आपने पहले भी पढ़े हैं pronouns. Write out the following sentences using pronouns instead of the words underlined. Pronoun आप स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं। Pronouns वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। जैसे अली है तो ही, सारा है तो शी। अली एंड सारा दो मिलके हो गए तो दे यूज करेंगे। इसी तरह कोई नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है, जैसे डॉग है तो उसके लिए हम इट यूज करेंगे। रिवर है या चेयर है तो उसके लिए भी हम इट यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड जैसे ही, शी, इट, दे, देम, देयर, मी, हिज, हर, ये सारे वो वर्ड हैं जो हम किसी नाउन की जगह पे यूज कर रहे होते हैं। इनकी जगह पे हम किसी बंदे या बंदी का नाम भी यूज कर सकते हैं। इनको कहते हैं प्रोनाउन। इसको याद रखने की एक ट्रिक ये भी है कि अगर हम प्रो हटा दें तो पीछे क्या बच जाता है? नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज कर रहे हो। कम टू द पार्ट ए। चोको टुक चोकोस पोको टू द कॉर्नर स्टोर। चोको की जगह पे क्या यूज होगा? ही टुक। अब वो चोको अपनी पॉकेट मनी कॉर्नर स्टोर पे लेके जा रहा था ना, ही टुक हिज पोको टू द कॉर्नर स्टोर। चोको एंड चोकोस फ्रेंड 8 bars of chocolate. He and his friend, HIS, his friend 8 bars of chocolate. Choco went to see the dentist. The dentist gave Choco some toothpaste. Dentist की जगह क्या यूज करेंगे? ये मैन है तो he gave Choco समझो, he gave him, HIM him। यहाँ पे देखें नेम था, एक नाउन है जिसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करें। चोकोस मदर एंड फादर, अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। इन्वाइटेड द नेबर्स इनटू चोकोस मदर एंड फादर्स हाउस पार्टी। अब बार बार हम मदर और फादर इतना लंबा तो नहीं यूज करेंगे ना। इनटू देयर हाउस, THEIR, देयर हाउस फॉर द टी। द नेबर्स नाउन है, दे यूज करेंगे। दे वर हैप्पी टू विजिट चोको नहीं, हिज पेरेंट्स, HIS हिज पेरेंट्स। Choco saw the little man in the dark in Choco's. He saw him in the dark in his bedroom. Choco started to save Choco's pocket. He started to save his Poco. Choco gave the Poco to Choco's dad. He gave. अब पोको जो है वो कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं कि हम हर या हिज यूज करें, हम कहेंगे इट। चोको गेव इट, IT इट टू हिज डैड। दैट्स ऑल, आई होप यू गॉट इट। इस यूनिट की रीडिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।